गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगी। एक मेथड हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे जर्टमैन एंड को के प्रयोग के द्वारा। आज हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिफिकेशन को कंसीडर करेंगे। 1947 में ईस्टरमैन, सिम्पसन और स्टर्न ने एक और भी ज्यादा स्पेसिफाइड प्रिसाइज जिससे रिजल्ट्स मिल सकते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेरीफाई किया और उसमें उन्होंने एटम्स को आपतित कराया। कॉन्टिन्यूअस फॉल ऑफ एटम्स का he used a Maxwell distribution law using a continuous fall of atoms of atomic beam on a wire। जैसा कि इस प्रयोग का जो प्रिंसिपल है उसको इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कॉलिमेटेड एटॉमिक बीम है जो सीजियम की है, इस सिलिट से इमर्ज हो रही है और ये जो सिलिट है ये ओ जो है वो ओवन है। ये जो सिलिट है वो स्ट्राइक करती है एक हॉट टंगस्टन के वायर पर एट द पॉइंट D, but this beam passes through the parallel slit as the pressure inside the apparatus is capped around 10 to 8 millimeter of mercury column. This oven slit even we can recognize by S and detector wire D. All three should be parallel and horizontal with each other. This is the precaution of this experiment, that the oven and the slit and the wire are parallel to each other and horizontal also with each other. When the cesium atom strike the hot wire D, जब सीजियम का एटम इस प्लैटिनम के हॉट वायर को स्ट्राइक करता है, they get ionized and they are collected by a negatively charged cylinder round the wire. The number of cesium atoms striking the wire is proportional to the ion current approaching towards the cylinder. जो भी हमारे पास आयनाइज होंगे उनको एक नेगेटिवली चार्ज सिलेंडर वायर के राउंड में है वहां कलेक्ट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सीजियम एटम स्ट्राइक द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आयन करंट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सिलेंडर। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सीजियम एटम इज सो स्मॉल दैट ऑल द सीजियम एटम व्हाटएवर देयर स्पीड विल स्ट्राइक एट द वायर D। यहाँ पर ये सारे सीजियम एटम जो है वो स्ट्राइक करते हैं and passing through the slit S, but the path of the atom in the presence of the gravitational field is parabolic, as we can observe in this figure. Thus, the atom emerging from a slit of oven in a horizontal direction would not pass through the slit S as shown by the path 1. As shown this in figure 4. If the atom trace the path 2 and 3, यदि एटम 2 और 3 जो यहाँ पर दिखाया गया है नंबर 1, नंबर 2 and नंबर 3, they may pass through the slit S। अगर इस पाथ को फॉलो करते हैं एटम्स तो they can pass through the slit S and spread the atoms moving along the path 2 is greater than the moving along the path 3. We can observe this is very easily in this figure. The atoms who obey the path 3 will get more deflected as compared to the atoms move through the path 2. When the detector is moved downwards from the position D, the atoms moving along the projectile path 2 will be collimated at a position D1 and the atoms moving along the projectile path 3 will be collimated at the position D2. Thus, the measurement of ionic current by a detector as a function of vertical displacement will provide distribution of velocities in the atomic beam.
The result obtained by this experiment, ये हमने यहाँ देखा है कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा, the result obtained by this experiment is shown in the figure 5. The dots in the diagram are the observed values and the continuous curve. These dots, this one, these dots are the observed values, and the continuous curve, this solid line which is considered as a continuous curve, as calculated on the assumptions that the velocities of the atom are distributed according to Maxwell's law. The agreement between the observed value and the theoretical calculated value justify the Maxwell distribution law of velocity. There is quite good agreement between the observed and theoretical values. Now we consider another experiment, third experiment. This third experiment is also the precise method. The relative number of atoms of the definite velocities is determined by using the velocity selector method. The principle of this experiment is shown in this figure. A collimated molecular beam emerging from the O1 enters the vacuum chamber through the slit S from detector D. For detector D is placed on other side of the slit in between the slit S and the detector D. Velocity selector is placed as shown in the figure. In velocity selector, there are two parallel discs D1 and D2 which are placed at a distance normal to the incident beam. There are slots at the periphery of these discs. We can observe these slots in this disc D1 and D2. These discs can be rotated at fixed angular velocities. The molecules coming from the slit S crosses the slot on the disc S1 and reaches the detector. The beam comes from the slit S, crosses the slot D1 and reaches the detector D. Only when the slot of rotating disc D2 comes directly in front of the coming molecules. If it is not come directly in between the coming molecule, then the molecule beam can't be reached at the detector D. This happens when the time taken by the molecule in moving from D1 to D2 is equal to time taken by the slot on the disc D2 to come in front of the molecule. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो जितने समय में मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे हैं और इसका स्लॉट इसके सामने आ रहा है इसके बराबर होगा, तो ही मॉलिक्यूल्स जो है वो D1 स्लॉट से निकलने के बाद D2 स्लॉट से पास आउट हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे. In this way, by changing the angular velocity of the disk, the molecular of different velocities are detected. The velocity of the molecule V is equal to L upon delta T, or delta T is L omega upon 2 pi. So, the thickness of the layer deposited on the detector plate measures the relative number of molecules of different velocities. So, we can say all these experiments show the complete agreement between the observed values and the theoretical values calculated with the help of the Maxwell distribution law of velocity. The next topic is degree of freedom. Swatantra Koti. The number of coordinates or independent quantities that are required to describe the entire space, state or configuration of the particle is known as degree of freedom. स्वतंत्र कोटि हम किसे कहते हैं? कोई भी कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, दिशाओं की उन संख्याओं को कण की स्वतंत्रता कोटि कहा जाता है.
जैसे यदि हम कंसीडर करें कि किसी सीधे तार पर चलती कोई चींटी तार की लंबाई के अनुदिश ही चलने को स्वतंत्र है, तो उस चींटी की स्वतंत्र कोटि 1 है। यदि हम, जैसे आप सब लोग भी बचपन में कैरम जरूर खेलते होंगे, कैरम पर जब हम गोटियां चलते हैं तो केवल हम उन गोटियों को उनकी लेंथ और विड्थ के अलोंग ही मूव करा सकते हैं। इसका मतलब कैरम को जब हम खेलते हैं तो उन गोटियों की स्वतंत्र कोटि कितनी है? 2 है। उसी प्रकार यदि हम देखें कि अगर मच्छर या मक्खी या जो भी आकाश पक्षी आकाश में जब उड़ते हैं तो वो किसी भी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकते हैं, तो उन पक्षियों की स्वतंत्र कोटि 3 है, क्योंकि वह तीनों दिशाओं में उड़ने को स्वतंत्र है। अर्थात जब हम ऊर्जा के विषय की बात करते हैं तो स्वतंत्र कोटि को भी हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। किसी कण की ऊर्जा जो है हम जानते हैं कि बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कण का वेग, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी कण अथवा अणु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव का क्षेत्र से कोण इत्यादि। ऐसा प्रत्येक कारक स्वतंत्र कोटि कहलाता है। चूंकि यहाँ हम गैस के अणुओं की बात कर रहे हैं तो वे स्थानांतरीय अथवा घूर्णी अवस्था अथवा कंपन किसी एक या एक से अधिक प्रकार की भी हो सकती हैं। अगर मान लो हम यहाँ कंसीडर करें कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु अणु हो हमारे पास, एक परमाणु अणु कौन सा होता है? जैसे हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, ऑर्गन ले लिया, क्रिप्टॉन ले लिया, जो संरचना रहित, चिकना और घर्षण रहित माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक परमाणु अणु के संघटनों में घूर्णन ऊर्जा का विनिमय नहीं हो सकता है, उनमें केवल स्थानांतरीय ऊर्जा का ही विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। किसी भी स्थानांतरीय गति को हम 3 परस्पर अभिलंब दिशाओं के घटकों में ले सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थानांतरीय गति को 3 परस्पर अभिलंब दिशाओं के घटकों में जब हम लेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में एक परमाणु अणु की स्वतंत्र कोटि की संख्या 3 होती है। जैसे किसी भी अणु का वेग x, y, z के अनुदिश Vx, Vy और Vz से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम उस अणु की कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? E is equal to 1/2 Vx square plus 1/2 Vy square plus 1/2 Vz square। एक परमाणु अणु की 3 स्वतंत्र कोटि हमने इस चित्र के द्वारा व्यक्त की है। This is along the x axis, this Vy is along the y axis and Vz is along the z axis। So हम कह सकते हैं कि कोई भी एक परमाणु अणु जो है उसकी 3 स्वतंत्र कोटियां होती है, और किसकी वजह से होती है? स्थानांतरीय गति की वजह से होती है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास यदि हम एक द्विपरमाणु अणु की बात करें, या इससे पहले हम एक और चीज कंसीडर कर लें कि a molecule is not a mass point but they have the finite in size, they have mass as well as moment of inertia, so therefore they have translational energy as well as rotational energy, and rotational energy is produced then due to arbitrary collision between the other molecules in the walls of the container. Since the angular momentum of a rotatory molecule can have 3 components about 3 axes of references, therefore it is expected for a molecule that it should have 3 rotational degree of freedom. Now we consider the atomic molecules. Diatomic molecules हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड, HCl, NaCl2, O2 और CO। इन सभी की जो संरचना है वो कैसी होती है? डम्बल शेप की होती है, अर्थात उसमें कई परमाणु होते हैं। तो संकट पर, कोलिजन पर स्थानांतरीय ऊर्जा एक्सचेंज के साथ साथ घूर्णन ऊर्जा का भी एक्सचेंज होता है। किसी भी अणु की घूर्णन गति की 3 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश घटकों में विभाजित किया जा सकता है। अतः घूर्णन ऊर्जा का विनिमय भी 3 स्वतंत्र विधियों से हो सकता है। एक द्विपरमाणु अणु जिसके परमाणु दृढ़बंध से बंधे होते हैं, उनमें घूर्णन की 3 स्वतंत्र कोटियों के स्थान पर घूर्णन की 2 स्वतंत्र कोटियां होती हैं, क्योंकि घूर्णन ऊर्जा का विनिमय
अणु की अक्ष पर नहीं हो सकता है, अतः द्विपरमाणुक अणु की 2 घूर्णन और 3 स्थानांतरीय स्वतंत्र कोटि होती है। इस प्रकार से द्विपरमाणुक अणु की कुल स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 हो जाती है। 3 स्वतंत्र कोटि और 2 हमारे पास घूर्णन की वजह से। इसी चीज को यदि हम कंसीडर करें कि द्विपरमाणुक अणु के यदि परमाणु बंधन पूर्णतः दृढ़ नहीं है तो उच्च ताप पर द्विपरमाणुक अणु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भी वो कंपन करने लगते हैं। इसलिए संघट्ट पर कंपन ऊर्जा के विनिमय के कारण कंपन से संबद्ध 2 स्वतंत्र कोटि और होती है। इस प्रकार द्विपरमाणुक अणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 7 हो सकती है, तो 7 हो जाती है, जिसमें 3 स्थानांतरित होती हैं, 2 घूर्णन गति के लिए होती है और 2 कंपन गति के लिए होती है। इसी प्रकार हम एक त्रिक परमाणुक अणु ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, वो 2 प्रकार से हो सकती है। त्रिक परमाणुक अणु जैसे H2S, SO2 या नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हो तो इन अणुओं की स्वतंत्र कोटि हमारे पास 6 होती है। 3 बंधनों के कारण 3 स्वतंत्र कोटियों की संख्या कम हो जाती है। जितने ज्यादा बंधन होंगे उतनी ही ज्यादा स्वतंत्र कोटियों की संख्या कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि हमारे पास त्रिक परमाणु अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 या और कोई हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी स्वतंत्र कोटि या वो इस प्रकार से लीनियर अरेंजमेंट में यदि बंधे हुए हैं तो उनकी स्वतंत्र कोटि सिर्फ 2 से कम होती है, क्योंकि उनमें 2 ही बंधन है। अगर 3 बंधन होते तो हम 3 × 3 9 -3 करके 6 निकाल देते हैं, और यदि 2 ही बंधन है, रेखिक व्यवस्था है, तो उनमें 2 बंधन होंगे तो 2 बंधन के साथ 3 × 3 - 2 अर्थात 7 हो जाएगी, तो उनकी 2 स्वतंत्र कोटि कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर भी हमारे पास स्थानांतरण एवं घूर्णन के साथ साथ कणों में कंपन भी होते हैं, जिससे कि इनकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम कंसीडर करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू फॉर टुडे।